सो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप जो हमने लास्ट लिखा था, असाइन नंबर इज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप। उसके बाद लिखो लास्ट नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज। डिफाइन बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज। सो हमको बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर भी रहे तो, क्योंकि कस्टमर और वेंडर हमारे बिजनेस पार्टनर से इंटीग्रेटेड है। ओके। सो हमको फिर जैसे हमने वेंडर के लिए बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया, वैसे हमको कस्टमर के लिए भी फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसको भी ग्रुपिंग देना पड़ेगा हमको। सो क्रिएट बिजनेस पार्टनर number range first. So path for this in SPR screen, then ACP reference IMG, then cross application components, then ACP business partner, then business partner, then basic setting, then number ranges and groupings. Here define number ranges. So double click on here, go to interval and go to interval and select free interval for business partner. Just press enter. So give any identification to your business partner. So हमने कस्टमर के लिए क्या लिया था? आई थिंक ये लिया था हमने, इक्वल्स टू, तो वही सेम नंबर देते हैं। याद है किसी को हमने कस्टमर के लिए क्या नंबर दिया था आइडेंटिफिकेशन नाम से? इक्वल्स टू डी और इक्वल्स टू एस, डोमेस्टिक और सर्विस का। इक्वल्स टू डी और इक्वल्स टू एस किया था हमने, ठीक है। यस। डोमेस्टिक कस्टमर अकाउंट ग्रुप एंड सर्विस, ऐसे हमने दो क्रिएट किए थे। देन इक्वल्स टू डी देखते हैं फर्स्ट, जस्ट सेव। ओके, then again go to interval and select now yes. Goes to yes. Select this and click on enter. So two number ranges is created for business partner. Then go back and next step, define grouping and assign number ranges. So ये grouping हम business partner के लिए create करेंगे. So define grouping and assign number ranges. So he up to the path number ranges and grouping path is same. Just below line, define grouping and assign number ranges. Here press enter. Go to new entries and select here grouping. So हमने वेंडर के लिए क्या ग्रुपिंग दिया था, किसी को याद है? हमने लिखा था CD MC, राइट? ऐसे ही कुछ हमारा ग्रुपिंग था। किसी ने नोट डाउन किया था क्या कि हमने क्या ग्रुपिंग कोड दिया था? CDOC। ओके, ये हमने डोमेस्टिक के लिए दिया था। देन सेकेंड वाला क्या था हमारा सर्विस के लिए? CSRV। ओके गुड, ठीक है। सो गिव आइडेंटिफिकेशन सेम देते। ओके, हियर एंटर शॉर्ट नेम। सो सेम अकाउंट ग्रुप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सेम हमारा बिजनेस पार्टनर है ना, वो सेम रहे, तो इसलिए सेम ग्रुपिंग दो। अगर मिलता है पॉसिबल है तो, नहीं तो आप डिफरेंट भी दिए तो भी चलेगा। सो हियर एंटर शॉर्ट नेम, डोमेस्टिक कस्टमर। सो शॉर्ट नेम में इतना ही आएगा। हियर एंटर सर्विस, so here enter service customer. Here enter full description, domestic customer, and here enter service customer. So here enter number range, so slash equals to D.
B for domestic customer. Here equals to S. Then click on Save tab. Then go back. Write down next step. Okay, write down next step. Assignment, number assignment of direction BP to customer. Number assignment for direction BP to vendor. Sorry, BP to customer. So path for this in SPRO screen, then ACP reference IMG, then cross application component, then master data synchronization, then customer vendor / vendor integration, then business partner setting, then setting for customer integration, then field assignment for customer integration, then assign keys, then define number assignment for direction BP to customer. Here press enter. Then click on new entries tab. Here select grouping. Is business partner grouping. तो हमने क्रिएट किया सी डी, क्या क्रिएट किया था हमने ग्रुपिंग अभी CD CDOC CDOC and CSRE. okay CSRB okay CSRB for service. So this is a business partner grouping, and here select your customer account group CDOC domestic customer account, and here CSRB, so customer service account. CSRB ओके. सो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है हमको, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग नहीं, सेम नंबर नहीं. जब हमारा दोनों ग्रुपिंग का अगर नंबर एंड सेम देते हैं हम, तो हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सेम दिया. नंबर जो अगर सेम देते हैं तो सेम नंबर आपको सिलेक्ट करेंगे. सॉरी, तो सेम नंबर देते हैं नंबर रेंज, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. तो अदरवाइज हमको अभी सेम नहीं है तो हमको करने की जरूरत नहीं है. देन क्लिक ऑन सेव टैब. Just press enter. Now go back. Write down next step. Define tolerance group for customer. Define
tolerance group for customers. सो हमने वेंडर के टाइम पे अकाउंट्स पेबल में हमने एक टॉलरेंस ग्रुप मेंटेन किया था, वो हमारा वेंडर एंड कस्टमर दोनों के लिए था। सो जस्ट चेक करेंगे, अगर वो क्रिएटेड होगा तो हमको करने की जरूरत नहीं है। ये हमने किया था वो टाइम पे। सो path for this in SPRO screen, then ACP reference IMG, then financial accounting, then financial accounting global set. Okay, financial accounting, then account receivable and accounts payable, then business transaction, then open item clearing, then clearing differences, then define tolerance for customer and suppliers. Here just press enter, go to position and search your company code. So हमारा कंपनी कोड क्या था? AMPL, राइट? सो AMPL जस्ट एंटर। सो AMPL के लिए हमने ऑलरेडी टॉलरेंस ग्रुप बनाया है, जो एक सिंगल ही हमारा टॉलरेंस वेंडर एंड कस्टमर के लिए दोनों के लिए रहेगा। सो हमने दोनों के लिए बनाया था ये, तो अभी हमको इसमें कस्टमर में करने की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन गो बैक, राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, define document types, okay, define document types and number ranges. तो जैसे हमारे वेंडर के लिए वेंडर इनवॉइस के लिए हमारा KR था, वेंडर पेमेंट के लिए KZ था, एंड ट्रांसफर एंड एडवांस के लिए हमारा KA था, वैसे ही हमारा कस्टमर के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा कस्टमर इनवॉइस के लिए। सो राइट डाउन, लिखो डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड नंबर रेंजेस, लिखा, उसके नीचे लिखो कस्टमर इनवॉइस DR, number range is 18, 18. Next, customer payment DZ, number range is 14. Then customer document transfer and reversal DA, number range is 16, 16. Then write down next step. Okay. So path for this in SPRO screen, then ACP reference IMG, then financial accounting, then financial accounting global setting, then document, then document types. Here define document types, just press enter, go to position tab and enter your document type. First is a DR, indicate is customer invoice. So here double click on DR. So DR is a number range is 18. Go to number range information. Here enter your company code AMPL. Then click on intervals. Insert here.
and enter your number range 18. So year is 2024. From number 1800 to number range 18999. Then click on Save tab. Just enter. Go back. Create second number range DZ. DZ is a customer payment. अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पोजीशन में आके सर्च करो. So here enter DZ customer payment. Customer payment for number range is 14. Click on number range information. Enter your company code and click on intervals. Insert number range is 14. 14. Enter 2024 from number 1400 to number 1499. And then click on Save tab. Just enter. Now go back. Go back. Again go back. Now select last DA. DA indicate is a document transfer and reversal. So double select on DA. 16 number range. Number range information. Enter your company code AMPL. Then click on interval. Same thing. Insert and assign 16 number range. Then click on Save tab. Now go back. Write down next step. Creation of GL master data. So हमको अभी रिक्वायर्ड GL भी लगेंगे, जैसा हमने सेंड्री डेटर्स फॉर डोमेस्टिक कस्टमर एंड सेंड्री डेटा फॉर सर्विस कस्टमर. ऐसे हमने दो अलग अलग अकाउंट ग्रुप बनाए कस्टमर के लिए. दो वैसे ही हमको रिकंसिलिएशन लेजर लगेंगे दोनों के लिए. सो क्रिएशन ऑफ GL मास्टर. So go to FS00. Creation of FS00 in GL master. So change your company code. Enter here AMPL. Just enter. Okay. So sundry debtors. तो sundry debtors हमारा काय में आएगा? Sundry debtors for डोमेस्टिक कस्टमर अकाउंट. ये जीएल हमको क्रिएट करना है, तो हमारा असेट में आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, इनकम लाइबिलिटीज कौन से अकाउंट हेड में जाएगा? तो ये डेटर्स है हमारे, जिनसे हमको हाँ असेट, राइट, असेट में जाएगा, क्योंकि हमारा ये करंट असेट है. क्योंकि कस्टमर को हम क्रेडिट पे कुछ सेल कर रहे हैं, तो हमको कस्टमर से पैसा आना है. ओके, दिस इज हमारा करंट असेट है. सो गो टू क्रिएट टैब. एंटर योर असेट. asset number GL account. Enter next 100108. Enter your company code AMPL. Just enter. Select your GL account type. So हमारा asset में आ रहा है तो बैलेंस शीट अकाउंट आएगा. Select your balance sheet account. Then account group is asset. Then short text. Sundry debtor for domestic customer account.
candidate for domestic customer. Then click on control data tab. Here, select your recon account for account type. So T is a customer. Select reconciliation ledger. Here short key. Enter here 031 for customer number. So जो भी हमारा रिपोर्ट होगा शॉर्ट होगा कस्टमर नंबर थ्रू. Then click on create slash bank slash interest tab. Here select bill status group G067. Reconciliation account. Here press enter. Then click on save tab. Then copy same. Create one more. Go to type other data. हमने कॉपी किया तो अदर डिटेल सेम रहेगा. जैसे हमको टेक्स्ट चेंज करना रहेगा. सेंड डेटा फॉर सर्विस. डालेंगे हम सर्विस कस्टमर. एंड देन सेव. सो वन मोर लगेगा हमको लेजर सेल, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल अकाउंट क्रेडिट होगा. तो सेल अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, सो अभी वो करने की जरूरत नहीं है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, पोस्टिंग की. कस्टमर डेबिट 01, कस्टमर क्रेडिट 15. This is a posting key for customer. This account receivable. Customer debit 01, customer credit 15. Okay, this is posting key. Write down next step, creation of customer master. Creation of customer master data. So like अभी हमारा यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल का. देन हमको अभी ट्रांजेक्शन करने के लिए, सेल्स पोस्टिंग करने के लिए, उनका इनकमिंग पेमेंट लेने के लिए हमको क्या लगेगा, कस्टमर्स लगेंगे. सो फर्स्ट हमको कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा. सो गो टू बीपी एंड क्रिएट कस्टमर्स. सो हियर सिलेक्ट बीपी, जस्ट प्रेस एंटर. सो गो टू ऑर्गेनाइजेशन टैब. First create business partner general. Here select your first grouping, customer grouping. जो सर्च हमने क्रिएट किया था CD, शिव क्या क्रिएट किया था हमने, किसी ने कुछ बताया था. ग्रुप क्या था हमारे, CDOC. अच्छा CDOC. ओके CDOC. तो हमारा यहाँ पे CDOC आएगा, डोमेस्टिक कस्टमर. देन सिलेक्ट CDOC. Here select title, enter company, give your name. फर्स्ट कस्टमर कर रहे क्रिएट या वेंडर कर रहे, फर्स्ट हमारा बिजनेस पार्टनर ही क्रिएट होगा. देन हम उसको एक्सटेंड करेंगे उसको कंपनी कोड लेवल पे, मींस अकाउंट ग्रुप में उसको उसके रिकंसिलेशन पे. सो बिजनेस पार्टनर में हमारा सिर्फ उसका बेसिक डेटा रहता है, मींस उसका नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, अदर थिंग्स. ओके, हियर एंटर नेम. सिर्फ कस्टमर क्रिएट करते हैं. सो डोमेस्टिक में पकड़ लो कोई भी नाम से, स्पैरेक्स करके कुछ बनाते हैं. स्पैरेक्स प्राइवेट लिमिटेड. हियर एंटर सिस्टम. सिस्टम में हमारा आएगा उसका शॉर्ट नेम, हम सब सर्च करेंगे. देन स्क्रॉल डाउन. हियर एंटर स्ट्रीट नेम, एड्रेस. so this is
ओके, सो कोई गोवा का वगैरह होगा, गोवा जो भी होगा, या कोई भी कहीं का भी स्टेट का है, हो सकता है, कोई भी उसका एड्रेस डालो, डमी। पकड़ लो गुजरात का है, ओके, तो सूरत रोड, रोड, ईयर एंटर पोस्टल कोड, मीन्स पिन कोड, गिव 6 डिजिट, ईयर एंटर सिटी, सूरत, ईयर एंटर कंट्री रीजन आयन, ईयर सिलेक्ट रीजन। सो सूरत हमारा काय में आता है, गुजरात में, तो सिलेक्ट गुजरात स्टेट। सूरत की भी है 06, just scroll down, select here language, PN, अगर उसका मोबाइल नंबर मेल आईडी वगैरह पता था मेंशन कर सकते हो। सो मेल आईडी है उसका तो डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी चलेगा। ओके, देन गो टू आइडेंटिफिकेशन टैब, just scroll down, ओके, सो हियर रिमूव दिस आईडी टाइप, ओके, यहाँ से निकाल लो तो आपको सीआईएन नंबर नहीं पूछेगा, किसी ने असाइन करके रखा है तो आप उसको रिमूव करो, एंड देन जस्ट वन टाइम प्रेस एंटर, स्क्रॉल डाउन, हियर सिलेक्ट टैक्स नंबर, टैक्स कैटेगरी, टैक्स नंबर मीन्स जीएसटी नंबर, हियर मेंटेन कस्टमर जीएसटी नंबर, सो हियर सिलेक्ट कैटेगरी IN3 एंड हियर एंटर जीएसटी नंबर, तो जो भी जीएसटी नंबर आएगा, जीजे गुजरात का, तो जो जीएसटी नंबर आएगा हम यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंटेन करेंगे। गो टू पेमेंट ट्रांजेक्शन टैब, हियर एंटर बैंक डिटेल, अगर कस्टमर का बैंक डिटेल है आपके पास तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो आईडी में आएगा 001, क्योंकि एक कस्टमर के मल्टीपल बैंक रहेंगे तो यहाँ पे आईडी में 002 आएगा, सो इस सीरियल वाइज देके हम क्रिएट करेंगे। हियर एंटर आईडी 001, हियर एंटर कंट्री रीजन IN, हियर एंटर बैंक की इज द IFC कोड, सो आई क्रिएट HDFC, जो भी होगा बैंक की क्रिएट, हियर एंटर बैंक अकाउंट नंबर कस्टमर, and then press enter, the system giving message for new bank key, ओके, सो जो भी न्यू बैंक की रहेगी मीन्स IFC कोड हमको सिस्टम में फर्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। सो हियर एंटर बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, बैंक ब्रांच सूरत, स्ट्रीट सूरत रोड, हियर एंटर पोस्टल कोड, हियर एंटर सिटी सूरत, हियर सिलेक्ट 0C कंट्री रीजन फॉर गुजरात, and then press enter, again press enter, then click on save tab. Now go back, okay, go back यानी कि जरूरत नहीं, again go to PP, हमने सेव नहीं किया एंड देन हम बैक चलेंगे, फिर से ऑल डिटेल हमको डालना पड़ेगा, सेम कॉप डालो यहाँ पे जो जो मिलता है आपको स्पेस स्पेस देके, क्योंकि हमने सेव नहीं किया एंड देन बैक गए डायरेक्टली। तो मल्टीपल सप्लायर क्रिएट करना हो तो फिर से यही स्टेप करना पड़ेगा, हाँ यही क्रिएट करना रहेगा। कस्टमर। हाँ ईसीसी में अभी डायरेक्टली ये नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट ये बीपी पे जाना पड़ता ना अभी, क्या रिकॉर्ड क्या,
ईसीसी में पहले तो हम टी कोड दूसरा यूज करते थे ना, इसको 01 हाँ, तो वगैरह। इसीलिए हम बीपी यूज करें पर ना ये एस्पेरानो में। हम्म 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 हम्म।